Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Formatting a Presentation. In this chapter, you will learn about Introduction to Slide Master, working with Slide Master, creating a custom layout, changing color scheme, formatting background color, insert smart art, insert a table, insert a chart and insert a screenshot. Introduction to Slide Master. The Slide Master is a main slide that stores information including font styles, placeholder sizes, position of text and objects, bullet styles, background design and color schemes. Suppose you have multiple slides in a presentation and you want all the slides contain same font and styles, you can apply it at one place, that is Slide Master, and that will be automatically applied to all other slides. Slide Master always appear as the top slide in a slide navigation pane and the related slide layout appears just below this Slide Master. When you apply some editing in a Slide Master, all the other slides that follow the Slide Master will be reflected with those changes. When you insert a Slide Master, it contains two placeholders. Slide title placeholder, it has the title of the page, and body text placeholder, it has a text, objects, charts, tables, pictures and other components. Okay. तो देखिए स्लाइड मास्टर आपका ना मेन स्लाइड है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. इसमें आपके फॉन्ट स्टाइल भी इंक्लूडेड होता है, पोजीशन होती है टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स की, बुलेट स्टाइल्स, बैकग्राउंड डिजाइंस, कलर स्कीम्स, राइट. सपोज आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन में और आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स में ना सेम फॉन्ट और स्टाइल्स आए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एक प्लेस पे जिसे कहते हैं स्लाइड मास्टर, और फिर वो ऑटोमेटिकली सब बाकी स्लाइड्स में आपका अप्लाई हो जाएगा. ओके. तो आपका ये जो स्लाइड मास्टर है ये आपका हमेशा अपीयर होता है टॉप स्लाइड में, आपका जो स्लाइड नेविगेशन पेन है ना उसके टॉप स्लाइड में, और जो रिलेटेड स्लाइड लेआउट्स हैं वो अपीयर होते हैं जस्ट बिलो इस स्लाइड मास्टर के. तो जब आप कुछ एडिटिंग अप्लाई करते हैं स्लाइड मास्टर में, तो जो बाकी की अदर स्लाइड्स है ना जो स्लाइड मास्टर को फॉलो करती हैं वो भी आपकी उनमें भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा. ओके. तो जब आप स्लाइड मास्टर इंसर्ट करते हैं तो उसमें दो प्लेस होल्डर्स होते हैं. एक होता है स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर, इसमें पेज का टाइटल होता है, और जो बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है इसमें टेक्स्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, चार्ट्स, tables, picture या दूसरे components. Okay. Working with Slide Master. Number 1, go to View tab. Number 2, in Master's View group, select Slide Master option. Number 3, a Slide Master tab will be selected on the ribbon. Number 4, click on Slide Master if it is not selected. And number 5, in the left navigation pane, select the Slide Master slide, that is first slide. Okay. Number 6, in Slide Master view, each slide below the Slide Master is a master slide for a supporting layout. For example, if you want to make changes to all the slides that use title and content layout, select the title and content layout master slide in the pane. To check this information, just have the mouse pointer over any slide layout in the Slide Master task pane and read the screen tip. Number 7, in Edit Theme group, click on drop down arrow of Themes command. Number 8, from the drop down list, select a particular theme. Number 9, in Background group, click on drop down arrow of Color and Font and select the required color and font and observe the change in the slides. Number 10, click on Background Styles drop down menu and select the desired background. Number 11, to change the color of the text, first and then go to select the Text Home tab and select the font color. Number 12, you will notice that the changes you are applying on the Slide Master are automatically applied to the master slides in the left navigation pane. Number 13, to close the master view, click on Close Master View button in Close Group. Okay. So what you have to do is, जब आप स्लाइड मास्टर पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप चाहेंगे व्यू टैब पे. ओके. फिर ये मास्टर्स व्यू ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे स्लाइड मास्टर ऑप्शन को. ओके. अब स्लाइड मास्टर टैब आपका सिलेक्ट हो गया है. ओके. और अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं स्लाइड मास्टर पे. इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे स्लाइड मास्टर स्लाइड. ओके. यानी कि पहली स्लाइड. नेक्स्ट, स्लाइड मास्टर व्यू में हर स्लाइड जो है बिलो द स्लाइड मास्टर एक मास्टर स्लाइड है फॉर सपोर्टिंग लेआउट. तो अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं ऑल स्लाइड्स में, जैसे कि जिसमें टाइटल है या कंटेंट लेआउट है, तो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट मास्टर स्लाइड को आपने सिलेक्ट करना है.
फिर एडिट थीम ग्रुप में आप ये ड्रॉप डाउन एरो है थीम्स कमांड का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर एक पर्टिकुलर थीम, देखिए आपके पास जो लिस्ट आई है इसमें से कोई एक पर्टिकुलर थीम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बैकग्राउंड ग्रुप में आप क्लिक करेंगे कलर एंड फॉन्ट, और जो भी आपको कलर फॉन्ट चाहिए होगा सिलेक्ट करेंगे और देखिए चेंजेस आप ऑब्जर्व करिए। फिर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड स्टाइल्स में, और इसमें से जो भी बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले जाएंगे आप होम टैब पे और सिलेक्ट करेंगे यहाँ से फॉन्ट कलर। एक तो देखिए जो जो चेंजेस आप अप्लाई कर रहे हैं सारे चेंज हो रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है। और फिर इसको मास्टर व्यू को क्लोज करने के लिए क्लोज मास्टर व्यू बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके क्लोज ग्रुप में। ओके, फैक्ट फाइल, द टेक्स्ट ऑन अ मास्टर स्लाइड इज यूज फॉर स्टाइलिंग पर्पस ओनली, द एक्चुअल स्लाइड्स आर क्रिएटेड इन नॉर्मल व्यू। जो टेक्स्ट है आपका मास्टर स्लाइड में उसको यूज़ किया जाता है स्टाइलिंग पर्पस के लिए, तो जो एक्चुअल स्लाइड्स होते हैं वो आपके क्रिएट होते हैं नॉर्मल व्यू में। Creating a new custom layout. Sometimes it happens that the standard layout does not suit your needs. In that case, you need to create a custom layout that perfectly suits your slide content. You can customize that layout by adding text-specific and object-specific placeholders. To create a custom layout, you need to follow the given steps. Okay. देखिए कई बार ये होता है कि जैसे कि जो स्टैंडर्ड लेआउट हैं वो आपकी नीड है उसको सूट नहीं कर रहे, तो इस केस में आप क्या करते हैं कि आपको एक कस्टम लेआउट क्रिएट करना पड़ता है जो आपकी स्लाइड कंटेंट को परफेक्टली सूट करता है। ओके, तो चलिए देखिए कैसे कस्टमाइज करेंगे हम लेआउट को। नंबर 1, गो टू व्यू टैब। नंबर 2, इन मास्टर्स व्यूज ग्रुप सिलेक्ट स्लाइड मास्टर ऑप्शन। नंबर 3, अ स्लाइड मास्टर टैब अपीयर्स इन द रिबन। Number 4, select this tab in the slide master navigation pane, select the blank layout. Number 5, you will see some default placeholders in it like date, /time or footer, etc. You can delete them if not required. Number 6, now add a placeholder by clicking on drop down arrow of insert placeholder command in master layout group and select the type of placeholder from the list like text, picture, chart, table, etc. Click and drag the mouse to insert a placeholder in a slide master. From the navigation pane, right-click on the selected layout. From the list, click on Rename Layout option. Number 9, a Rename Layout dialog box opens. Type the new name for the layout. Click Rename button. Number 10, now save the file by clicking on File, then Save As. Number 11, in Save As dialog box, type the name of the file. In Save As type, select PowerPoint template and click Save button. Number 12, click on Close Master View button. You will see that the customized layout has been added to the built-in layout list. Okay, तो अब किस तरह से कस्टमाइज करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे व्यू टैब पे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे मास्टर व्यूज ग्रुप में स्लाइड मास्टर को। अब स्लाइड मास्टर टैब अपीयर हो रहा है। ओके, इस टैब को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये जो स्लाइड मास्टर नेविगेशन पेन है इसमें से आपने ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखिए कुछ डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर्स हैं इसमें, लाइक आपका डेट, टाइम या फुटर, है ना। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब आपको प्लेस होल्डर को ऐड करना है। ये जो ड्रॉप डाउन एरो इंसर्ट प्लेस होल्डर का, इस पर क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ प्लेस होल्डर आप लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर या चार्ट एक्सेट्रा। अब हम क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे प्लेस होल्डर को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड मास्टर में। फिर नेविगेशन पेन से हम राइट क्लिक करेंगे ऑन द सिलेक्टेड लेआउट। ओके, फिर लिस्ट से हम क्लिक करेंगे रीनेम लेआउट ऑप्शन पे। ओके, अब ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फिर आप यहाँ पे न्यू नेम टाइप करेंगे, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट नेम। ओके, फिर आपका फाइल पे आप क्लिक करेंगे, देन सेव एज। अब सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। टाइप करिए सेव एज में, सिलेक्ट करेंगे पावरपॉइंट टेम्पलेट को, फिर सेव बटन को क्लिक करेंगे। अब क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका कस्टमाइज लेआउट जो है वो आपका बिल्ट इन लेआउट लिस्ट में ऐड हो चुका है ना। फैक्ट फाइल, यू कैन डिलीट द लेआउट बाय सिलेक्टिंग द लेआउट फ्रॉम नेविगेशन पेन एंड क्लिकिंग डिलीट ऑप्शन फ्रॉम एडिट मास्टर ग्रुप। आप लेआउट को डिलीट कर सकते हैं, कैसे? उस लेआउट को सिलेक्ट करके नेविगेशन पेन से, और फिर आप क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन को जो है आपको
आपको मिलेगा एडिट मास्टर ग्रुप में. Changing color scheme. Every presentation comes with color schemes. You can change the color scheme of the complete presentation or a single slide. The color of a specific elements on a slide, such as title and the background, can also be changed. Number 1, go to Design tab. Number 2, in Themes group, click on More drop-down arrow to see more themes and select a particular theme by clicking on it. Number 3, click on More drop-down arrow in Variants group. Number 4, hover the mouse over Colors option. Number 5, when you hover the mouse on various color schemes, it will reflect on the slide. Choose the required color scheme and right-click on it. Choose Apply to all slides option. Okay. तो देखिए हर प्रेजेंटेशन में ना आपके जो कलर स्कीम के साथ आती है, तो आप कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं. ओके, तो जो कलर है स्पेसिफिक एलिमेंट्स के स्लाइड में, जैसे कि टाइटल है या बैकग्राउंड है, उसे भी चेंज किया जा सकता है. क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में, फिर थीम्स ग्रुप में क्लिक करेंगे मोर ड्रॉप डाउन एरो पे. अब देखिए आपको बहुत सारी थीम्स नज़र आएंगी, कोई भी पर्टिकुलर थीम हम इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, फिर वेरिएंट ग्रुप में फिर से मोर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. अच्छा, अब कलर्स के ऊपर होवर करेंगे हम माउस को, तो देखिए आपकी जो जो कलर्स पे हम होवर कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना स्लाइड पे. कोई भी कलर स्कीम हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद चूज़ करेंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स ऑप्शन को. ओके, और ये आपका हो जाएगा फिर इस तरह से. Fact file. A color scheme can also be applied to a single slide by right clicking on it and select apply to selected slide option. Color scheme जो है हम अब single slide में भी अप्लाई कर सकते हैं. आपको जस्ट क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पर और फिर सिलेक्ट करना है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर. You can change the background color, pattern and texture of a slide. You can add a solid color, picture or texture to the background. We can do it by following the given steps. Go to Design tab. Number 2, in Customize group, select Format Background command. Number 3, a Format Background task pane opens. Number 4, in Fill section, select the desired option to fill the background by clicking on the radio button. 5, click on Fill Color drop-down arrow and select the desired color. Number 6, you can set the transparency of the color by moving the slider of transparency option. Number 7, click on Apply to All button present at the bottom of the task pane to apply the selected color to all the slides. देखिए आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, पैटर्न या जो स्लाइड का टेक्सचर है वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आप कोई भी सॉलिड कलर, पिक्चर या टेक्सचर जो है बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप जाएंगे डिज़ाइन टैब में, फिर कस्टमाइज ग्रुप में आप फॉर्मेट बैकग्राउंड कमांड को सिलेक्ट करेंगे. अब ये आपका ओपन हो गया टास्क पेन. फिर फिल सेक्शन में देखिए जो भी डिज़ायर्ड ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड को फिल करने के लिए. फिर क्लिक करेंगे फिल कलर ड्रॉप डाउन एरो पे और जो भी डिज़ायर्ड कलर है आप उसे सिलेक्ट करेंगे. अच्छा, ओके, अब आप ना ट्रांसपेरेंसी जो है कलर की वो सेट कर सकते हैं बाय मूविंग द स्लाइडर ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन. फिर हम क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल बटन. ओके, नेक्स्ट इंसर्ट स्मार्ट आर्ट. Smart Art is a graphic tool that allows us to present data or information with graphics instead of just using text. It contains various styles of graphics which include list, cycle, hierarchy, matrix, picture, pyramid, etc. Steps to insert Smart Art are: number 1, open a blank slide. Number 2, go to Insert tab. Number 3, in Illustrations group, select Smart Art command. Number 4, choose a Smart Art graphic dialog box opens. Number 5, from the left side, select the category of a Smart Art, say cycle. Number 6, the middle part displays the related options. Select the desired option, say text cycle. Number 7, the right part shows a preview of the selected Smart Art. And number 7, click OK button. Number 9, a blank text cycle is displayed on the slide. Number 10, click on the text, a cursor appears on the screen and type some text in it. Number 11, similarly, you can add any smart art which you feel better convey your information to the audience while presenting the topic.
देखिए आपका स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिक टूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम डेटा को प्रेजेंट करें या इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें ग्राफिक्स के साथ। ओके इसमें आपके बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं ग्राफिक्स के, जिसमें आपके इंक्लूडेड है लिस्ट, साइकिल है, हायरार्की है, आपका मैट्रिक्स है, पिरामिड है, ये सब है। ओके तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड को ओपन करेंगे, फिर जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप स्मार्ट आर्ट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके फिर आपका ये चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फिर लेफ्ट साइड से आप कैटेगरी जो है स्मार्ट आर्ट की सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फॉर एग्जांपल साइकिल कर दिया। अब जो मिडिल पार्ट है वो रिलेटेड ऑप्शन को शो करता है, तो फिर आप डिज़ायर्ड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपका टेक्स्ट साइकिल। फिर जो राइट पार्ट है देखिए आपका जो हमने जैसे स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट किया उसका प्रीव्यू शो कर रहा है। फिर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए एक ब्लैंक टेक्स्ट साइकिल डिस्प्ले हो रहा है ना स्लाइड पे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, कर्सर अपीयर हो गया स्क्रीन पे। अब इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके इसी तरह से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बेटर वे में कन्वे हो सकती है ऑडियंस को, जब कभी भी आप उस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी, open a blank slide, go to design tab, select an organic theme from themes group, click on insert tab and illustrations group. In illustrations group select on insert tab पे आते हैं, ठीक है। Click on insert tab, in illustrations group select smart art option. A smart art graphics dialog box opens. Click on list category, select basic block list option, click OK button. A basic block list smart art will be added to the slide. Click on design tab. In smart art styles group select cartoon style. Click on the text one by one and type the text as shown in the figure. Click outside the smart art. देखिए आपने क्या करना है, ब्लैंक स्लाइड को ओपन करना है, फिर आप जाएंगे डिज़ाइन टैब में, फिर यहाँ से आप ये थीम्स ग्रुप में से आप इसको ऑर्गेनिक थीम को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप स्मार्ट आर्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, लिस्ट कैटेगरी में क्लिक करेंगे। ओके फिर हम सिलेक्ट करेंगे बेसिक ब्लॉक लिस्ट ऑप्शन और फिर ओके अब ये बेसिक बुक ब्लॉक लिस्ट स्मार्ट आर्ट ऐड हो गया स्लाइड के साथ। फिर हम क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब, फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे कार्टून स्टाइल, फिर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वन बाय वन और टेक्स्ट को टाइप करेंगे जो आपको फिगर में शो रखा है, विच इज कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक। ओके ओके लेट्स टाइप इट। सो इसके बाद क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट के आउटसाइड, insert a table. There is an additional feature in PowerPoint that helps to organize the information in a tabular format. A table is always a better option to present an information rather than simple text. To insert a table in a slide, the steps are as follows. Number 1, open a slide. Number 2, go to insert tab. Number 3, in tables group, select table, drop down arrow. Number 4, from the grid, select number of rows and columns. Number 5, click once to add a table in a slide. Number 6, click in the first cell, a cursor appears. Number 7, type the text and press tab key to move to the next cell. Number 8, similarly, you can add data in other cells. Number 9, click outside the table. अच्छा साहब आपको क्या करना है, देखिए एक ना एडिशनल फीचर है आपके पावर पॉइंट में जिससे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टैबुलर फॉर्मेट में। ओके तो हमेशा ना टेबल एक बेटर ऑप्शन होता है एक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। तो देखिए किस तरह से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में। देखिए सबसे पहले ओपन अ स्लाइड, देन इंसर्ट टैब, फिर टेबल्स ग्रुप में टेबल ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट किया। ओके अब ग्रिड से जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक किया एक बार जिससे टेबल ऐड हो जाएगी आपकी स्लाइड में। अच्छा अब देखिए फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो कर्सर अपीयर हो रहा है। ओके टाइप करेंगे कुछ टेक्स्ट एंड देन प्रेस करेंगे टैब की को नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए। इसी तरह से आप डेटा को
ऐड कर सकते हैं दूसरे सेल्स में। फिर आप क्लिक करेंगे टेबल के बाहर। ओके, फैक्ट फाइल, राइट क्लिक ऑन टेबल एंड सिलेक्ट फॉर्मेट शेप। You can also change the background color of the table by selecting solid fill radio button and then select any color. देखिए, टेबल पे राइट क्लिक करना है आपको और फिर सिलेक्ट करना है फॉर्मेट शेप को। फिर आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं टेबल का। कैसे? आप सॉलिड फिल रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे और फिर कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Insert a chart. A chart is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. Charts make it easier to show comparisons and growth relationship among the values and trends in data. Charts provide an accurate analysis of the information. Rather than giving the information in the form of text, you can add chart in the slide to represent the information. To add a chart in a slide, the steps are as follows. Number 1, open a slide. Number 2, go to Insert tab. Number 3, in Illustrations group, select Chart command. Number 4, an Insert Chart dialog box appears on the screen. Number 5, select the chart category from the left pane, say pie chart. Number 6, you will see the various options of the selected chart. Number 7, select the required option. Number 8, a preview will be displayed in the below right pane. Number 9, click OK button. Number 10, a chart will appear along with Excel sheet. Number 11, an Excel sheet contains some default data. Number 12, delete the default data and add your data in it. Number 13, the values you add in the sheet will reflect the chart you have added in a slide. Okay, देखिए चार्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं। चार्ट एक काफ़ी इफेक्टिव वे होता है कि आप अपने डेटा को डिस्प्ले करना पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में। ओके, तो अब जैसे कंपैरिजन करना है, ओके, तो चार्ट से ना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, कंपैरिजन करना, रिलेशनशिप जो वैल्यूज़ के बीच में होती है एंड जो डेटा में ट्रेंड्स होते हैं, राइट। तो एक एक्यूरेट एनालिसिस जो है इन्फॉर्मेशन का वो चार्ट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे हम चार्ट्स को। सबसे पहले हम ओपन करेंगे स्लाइड, फिर हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर इलस्ट्रेशंस ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे चार्ट कमांड को। ओके, फिर इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया स्क्रीन पे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे चार्ट कैटेगरी को लेफ्ट पेन से। फॉर एग्जांपल हमने पाई चार्ट कर दिया। अब देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, कोई भी ऑप्शन आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब प्रीव्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है राइट पेन के बिलो में, देखिए हम क्लिक करेंगे ओके बटन। अब चार्ट अपीयर होगा एक्सेल शीट के साथ और एक्सेल शीट में कुछ आपके डिफ़ॉल्ट डेटा है। ओके, आप इस डिफ़ॉल्ट डेटा को डिलीट कर सकते हैं और फिर अपना डेटा इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो जो वैल्यूज़ आप ऐड करेंगे शीट में फिर वो आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट होंगे जो आपने ऐड किए हैं स्लाइड में। ओके, फैक्ट फाइल, you can change the chart style by selecting a chart, then design tab, chart styles group and select any style. आप चार्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपको सिलेक्ट करना है चार्ट, फिर डिज़ाइन टैब, देन चार्ट स्टाइल्स ग्रुप और कोई भी स्टाइल आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंसर्ट अ स्क्रीनशॉट। यू कैन कैप्चर अ स्क्रीनशॉट द करंटली ओपन्ड विंडो एंड ऐड इट इन योर स्लाइड। टू ऐड अ स्क्रीनशॉट टू अ स्लाइड द स्टेप्स आर एज फॉलोज। Number 1, open a blank slide. Number 2, go to Insert tab. Number 3, in Images group, click on the drop-down arrow of the Screenshot option. Number 4, select a screen clipping option from the drop-down list. Number 5, a screen will get faded and a plus mouse pointer appears on the screen. Number 6, click and drag the mouse to select the area that is to be captured. Number 7, the area will be captured and added to the slide. ओके, अच्छा आपको पता है आप स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हैं, आपका जो करंटली ओपन विंडो है उसका, और फिर आप उसको स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्लैंक स्लाइड, फिर इंसर्ट टैब, फिर इमेजेस ग्रुप में क्लिक करेंगे जो ड्रॉप डाउन एरो है स्क्रीनशॉट ऑप्शन का। ओके, इसमें से सिलेक्ट करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग। अच्छा देखिए स्क्रीन आपकी फेड हो गई है और एक ये प्लस माउस पॉइंटर अपीयर हो रहा है स्क्रीन का, है ना। अब इसे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को एरिया सिलेक्ट करने के लिए जो भी कैप्चर करना है।
ओके, एंड ये जो एरिया आपका कैप्चर हो जाएगा और फिर आपके स्लाइड के साथ ऐड हो जाएगा. ओके, summary points. The top slide in Microsoft PowerPoint is called the master slide. The slide controls the theme, layout, color background, font, etc. Slide title placeholder has the title of the page, and body text placeholder contains the text, objects, charts, tables, pictures, and other components. When you add a theme to the slides, you can change the color scheme in it. Smart Art is a graphic tool which is used to visually communicate the information. You can capture a screenshot of the currently opened window and add it in your slide. A table is a closed structure that organizes into rows and columns. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.